In this part, we will discuss about kinetic energy. Okay, what is kinetic energy? This is very important thing that energy we are discussing two type of energy: potential energy and kinetic energy. Okay, in our previous video we discussed about potential energy. Now this is a kinetic energy. Okay, what is kinetic energy? When a body is in motion, whenever you find anything is in motion, then it means that body possesses kinetic energy. Okay, suppose we have an example, a moving cricket ball. Okay, that is possess kinetic energy. Got it? A moving cricket ball possesses kinetic energy. And if anything, okay, anything you see in your surrounding which is moving, that has kinetic energy. Like electric fan, if it moves, then it has kinetic energy. And if a fan is in its rest condition, then what kind of energy it possesses? That is potential energy. Okay, so this is a difference between kinetic energy and potential energy. When a body is in motion, then the energy possessed by that body is called kinetic energy. Okay, so I have written some example also here, that a moving cricket ball possesses kinetic energy. And each moving part of the engine you can understand from here. If anything is moving, if I am moving, okay, if you are running, okay, then you possess kinetic energy. So you should know this thing. Okay, now the same thing, the unit of kinetic energy is at same, that potential energy and energy, which is joule. And this is also a scalar quantity. Now we have to find out the formula for kinetic energy, as we have find out for potential energy. What is the formula for potential energy? Which is mgh. Okay, now we will prove here what is the formula for kinetic energy. For this we have to do, we have to suppose something. We have to suppose a body of mass m. Suppose this is a body whose mass is m. Okay, this is moving with a velocity u. Okay, as we know, initial velocity, we always suppose initial velocity as u. Okay, this is acted upon by a force f. ठीक है, यहाँ पर f फोर्स काम कर रहा है इस बॉडी पे, तभी तो ये मूव कर रहा होगा, और हमने इस पे फोर्स लगाया t टाइम के लिए. ठीक है, इतना आपने सपोज करना है. अब स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी u था, जब हमने इस पर फोर्स लगाया f का t टाइम के लिए, ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गया. ठीक है, अब इसका वेलोसिटी हो गया v. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया v. और जो फोर्स लगाने के बाद इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कवर किया होगा, दैट वैल्यू इज s. ठीक है, ये क्या होता है? s होता है, और t टाइम के लिए ये काम कर रहा होता है. गॉट इट? ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन इन दिस केस. ठीक है, तो हमको यहाँ पे वर्क डन निकालना है. तो हम किस तरीके से पहले वर्क डन निकालेंगे? देखो, एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी एनर्जी निकाली जाती है तो एनर्जी वर्क के फॉर्म में ही हम लोग निकाल सकते हैं. मैंने क्या सपोज करने के लिए बोला आपसे? मैंने बोला कि एक बॉडी सपोज करनी है जिसका मास m है. ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है u. अब हमने इस पर t टाइम के लिए एक फोर्स f लगाया. f फोर्स लगाने से ये मूव किया, यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई. अभी यहाँ पे u थी, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई. ठीक है, अगर आप इसको रेस्ट कंडीशन में मानते हो स्टार्टिंग में, तो u ना मान के इसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी मान लोगे? 0 मान लोगे. लेकिन अभी हम ये सपोज नहीं कर रहे. देखो, अगर आप ये मानते हो कि बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन में, इसका मतलब इसकी u कितना होगा उस टाइम पे? 0 होगा. बट वी आर नॉट सपोजिंग इट. हम ये देख रहे हैं कि उस टाइम पे भी वो मोशन में ही था उसकी, लेकिन वेलोसिटी u थी. लेकिन अब फोर्स लगाया तो सीधी सी बात उसकी वेलोसिटी बदल गई होगी. फोर्स लगाने के और t टाइम तक जब हमने फोर्स लगाया तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर लिया. उसको हमने क्या सपोज कर लिया? s सपोज कर लिया. ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया. अब हमने वर्क निकालना है. वर्क निकालने का तरीका हमारे पास वही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है? ma. ठीक है, और हमने क्या माना हुआ है? डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है. तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? w इक्वल टू एम ए एस. इतना आप लोगों को बात समझ आ रही होगी. यू कैन सी है ऑल्सो. ठीक है, जो वर्क निकल रहा है वो कितना निकला? एम ए एस. अब हमको एक काम करना है, यहाँ पे इस s की वैल्यू को पुट करना है हमारी वेलोसिटी के बेसिस पे. v और u के बेसिस पे यहाँ पे s की वैल्यू पुट करनी है. सो वी कैन डू दिस बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो आप तुरंत से मुझे बताने वाले हैं, सर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो आप इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन सी हेयर ऑल्सो.
इफ यू आर एबल टू सी, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज अ फॉर्मूला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी कैन फाइंड आउट एस फ्रॉम हेयर। ओके, अब हमने काम क्या करना है, देखो W इक्वल टू एफ एस था, हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन आई है W इक्वल टू एम ए एस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू रखनी है इसकी, तो हम लोग यहाँ से ए एस की पूरी वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू इतनी थी, ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी है, ठीक है। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये फार्मूला बन के आ गया, और यही फार्मूला जो है वर्क डन का, इट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा वर्क का फॉर्मूला हो गया जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, गॉट इट, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर हम इनिशियल वेलोसिटीज़ की जीरो मान लें, अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करते हैं, सो इट विल बिकम हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, गॉट इट। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा फॉर्मूला, बहुत ही आसान सा था, ठीक है। हमने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट माना जिसका मास m था और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, हमने इस पर F फोर्स लगाया, तो ये s डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया और इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो हमने यहाँ से वर्क डन निकाला, वी हैव फार्मूला फॉर वर्क डन, और हमारे पास वर्क डन को जब हमने निकाला तो वो इतना आया, फिर हमने ए एस की वैल्यू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से रखी, सो वी गेट दिस फार्मूला। और हमने बोला है कि वर्क ही किस फॉर्म में स्टोर होता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। अब वी हैव सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इट, ठीक है। अगर हमारे पास ये फार्मूला आ गया, मैंने आपसे बोल दिया कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो आप सीधे यू क्या रख दोगे, जीरो। देखो तो फार्मूला क्या बन गया, क्योंकि हमारे पास मेनली 9th क्लास में इसी तरीके का बनता है, अगर हम इसको जीरो रख देंगे तो हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज अ फार्मूला ऑल्सो, ठीक है, व्हेन एट स्टार्टिंग द पोजिशन इज रेस्ट कंडीशन, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, अब यहाँ से हमको क्या पता चलता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। और अब स्क्वायर ऑफ द, अब यहाँ से हम बहुत कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, आपने बोला कि सर हाफ एम वी स्क्वायर ऐसा है जब बॉडी रेस्ट में थी, मैं बोलूँ अगर इसकी वेलोसिटी हमने डबल कर दी तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देन यू विल से 4 टाइम्स। अगर मैंने इसका मास डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दैट इज़ 2 टाइम्स, ठीक है। इस तरीके से आपने इस चीज़ को समझना है। ओके, नाउ अनदर थिंग, देखो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी काइनेटिक एनर्जी की, क्यों पॉजिटिव आएगी, देखो मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मास जब भी आपको मिलेगा ये पॉजिटिव मिलेगा। अगर वेलोसिटी नेगेटिव भी होगी तो अगर आप इसका स्क्वायर भी करेंगे तो वो टर्म कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, यू शुड नो दिस पॉइंट, ठीक है। ये हमेशा के लिए याद कर लो आप, काइनेटिक एनर्जी और नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, आई एम टेलिंग यू। देखो हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, देखो हाफ तो एक नंबर है, एम मास है, मास कभी नेगेटिव नहीं होता किसी भी चीज़ का, ठीक है। वी और यू नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। अगर वी और यू क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर बोल रहा हूँ, ठीक है, तो अगर v जो है नेगेटिव होगा भी तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और एज आई डिस्कस दैट दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, go through it, dear students. Thank you.